Hi everyone, my name is Preeti Singh. I'm your life coach, healer, and NLP master. In this video, I'm actually going to share a story or testimonial about two of my clients who got coached with me a couple of months ago. Approximately 4 to 5 months ago, there were two clients who came to me for life coaching and healing, and we discussed on many things, and we decided to proceed with this coaching. So here. Um, these two clients or these two individuals, these two people, when they approached me, they said very clearly that, "Hey Preeti, we have done a lot of research about you. We have tried, getting some inputs from the previous companies that you have worked at, and from all the inputs and the details that we have got about you, we would like to uh, have a coaching session for us." And there is a goal that we are working towards, and hence we would like to pursue with you. तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब ये दोनों क्लाइंट्स मेरे पास आए और इन्होंने जब मेरे बारे में बताया कि इन्होंने मेरे बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या रिसर्च वगैरह किया हुआ है, तो इनका जो मेन अप्रोच था को लेके, मेरे कोचिंग को लेके, वो ये था कि उनको अपने करियर में जो है एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए था, एंड जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया था ऑलरेडी इन द पास्ट, बट somehow they could not manifest it, or somehow they were always they were always finding some kind of challenge, some kind of situations because of which they could never attain, or they could never make that financial goal happen. This video is actually going to be in Hindi and English both, so that a lot of people who are looking for career related growth, career related success, everything, they can understand, and they can and if they are looking for some kind of coaching in any area of their career, I can definitely help you. So now let us get started, and I would like to help you understand that definitely there were many things, there were many life coaching techniques, and there were many things that I taught them. But here in this video, I'm actually going to focus more upon the vision board and the journaling. That how these two clients were able to attract their desired goal in just 4 months of time by using journaling or scripting technique, and the technique which I made a video recently upon, that is vision board. तो इन दोनों clients ने जो है मुझसे जब अप्रोच किया, तो उनका कहना था कि प्रीति, we have been earning 60 and 65 lakhs for the last couple of years, or to give the maximum range, for the last 5 years they have been working at a annual CTC or annual income of 60 and 65 lakhs. This is in Indian rupees, obviously. And I cannot disclose the name of the company where they were working, because we have already discussed about that I should not disclose about it. So I hope everybody can understand. But here, uh, so in this video, I'm going to discuss that how by using these two techniques of journaling and vision board, they were able to achieve their financial goal. तो जैसे उनका कहना था कि प्रीति, हम पिछले 5-6 सालों से जो है हम 60 और 65 लाख की सैलरी पे रुके हुए हैं। हमने बहुत सारे सर्टिफिकेशंस किए, हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, हमने काफ़ी कुछ अपने करियर में अप्लाई किया है, एंड वी आर द फ्रेंड्स फॉर द लास्ट like two decades now, and we want to see growth together. तो uh, इनका कहना था, या फिर इनका जो फाइनेंशियल गोल था, वो ये था कि 65 लाख के एनुअल CTC से जो है इनका जो डिज़ायर्ड इनकम था, दैट वाज अबाउट 1 करोड़। तो उनका कहना था कि प्रीति, हमें जो है 1 करोड़ की जो है CTC हम देख रहे हैं, जिसके लिए हमने बहुत कुछ किया है, टेक्निकल स्किल्स पे काम किया है, अपने पर्सनालिटी पे काम किया, बहुत सारे एरियाज में काम किए हैं, लेकिन फिर भी वी हैव नॉट बीन एबल टू मैनिफेस्ट, और वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव द काइंड ऑफ financial growth they are looking for. In fact, they have not seen enough increment or visible increment in their career in the last these years. तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप 60 और 65 लाख से जब आप 1 करोड़ एनुअल इनकम की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो है आप कितने समय में या कितने अगले सालों में आप उसके आसपास पहुंच सकते हैं, या फिर उस गोल की तरफ आप पहुंच सकते हैं? तो उनका जो है कहना काफ़ी मतलब क्लियर नहीं था, बिकॉज उन्होंने काफ़ी सालों से ऑलरेडी काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ क्लियर आंसर दे नहीं पाए। लेकिन
क्वेश्चन आंसर्स के बाद में जब मैंने उनको ये पूछा कि अगर मान लीजिए कि मेरे साथ कोचिंग मैं जब आपको कोचिंग दूंगी और इस प्रोसेस के बाद आपको क्या लगता है कि हम क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि हम उस डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर पाए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो उनका जो है मेरे पे काफ़ी भरोसा था, मेरे टेक्निक्स पे काफ़ी भरोसा था, जो फीडबैक उन्होंने अलग अलग कंपनी से लोगों से लिया था उस पर काफ़ी भरोसा था। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स दे सेड that Preeti, I think if we work with you at least in the next 2 to 3 years, we can see visible financial growth in our annual income or in our finances related to our career. Then I said that there are many powerful techniques through which you can actually manifest this desire, this goal. And when I said this, they were initially a little confused, but they surrendered themselves. क्योंकि जब भी आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं आपके अपने एक बड़े गोल को लेकर के, तो वहाँ पे सरेंडर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कई बार भगवान से जो है प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं कि हमारी ये मनोकामना जो है पूरी हो जाए। लेकिन जब तक आप वहाँ पे सरेंडर की भावना नहीं रखेंगे, जब अपने मन में हमेशा डाउट्स रखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, ये क्या मैं सच में डिजर्व करता हूँ, क्या मैं सच में लकी हूँ, नहीं लकी हूँ, इस तरीके के थॉट्स यदि आपके मन में बार बार आएंगे तो आप अपने गोल को जो है बेसिकली और अपने आप से दूर कर रहे हैं। तो जब हमने बात की तो उन्होंने जो है एक सरेंडर मोड में मुझसे जो है हमारी आगे की कन्वर्जेशन होने लगी। एंड उनका जो है काफ़ी जो है पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग था इस चीज़ को लेकर के कि एटलीस्ट इस कोचिंग के थ्रू जो है कुछ तो बेहतर उनके फाइनेंशियल गोल्स में जो है आएगा, जो वो अपने करियर में अचीव करना चाहते हैं। यदि आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट कि आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी किसी सिमिलर जर्नी पे जो है चल रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक करियर गोल को लेकर के करियर में ही होंगे। हो सकता है कि आपके कुछ बिजनेस गोल्स हो सकता है कि आपके कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड आपके पेरेंट आपकी फैमिली में किसी के ऐसे गोल्स हों। तो जब भी हम एक सिमिलर टाइप के गोल की बात कर रहे होते हैं तो कई बार हमें कई दूसरों के टेस्टिमोनियल या दूसरों के टेक्निक्स जो है हमें कई बार मोटिवेट करते हैं, हमें प्रभावित करते हैं, और वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने गोल्स को जो है कैसे उसी तरीके से चीज़ों को अपना करके हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपको अभी तक का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स को कीजिए, और यदि आपके आसपास आपके सर्कल में आपके फैमिली में कोई भी ऐसा है जिसको ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो प्लीज़ उनको भी आप ये शेयर कीजिए। आज के समय पे फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने काम करना शुरू किया और जो है मैंने जैसा कि मैंने कहा कुछ समय पहले कि बहुत सारे टेक्निक्स हमने इसमें अपनाए। मैंने उनके पैटर्न्स पे उनको काम कराया, उनके थॉट प्रोसेस पे काम करवाया, उनके एक्शंस को मैंने हेल्प किया उनको समझाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है ओवरऑल हमने किया। यानी ओवरऑल जो है ये एक 6 महीने का प्रोसेस था। और जो है हालांकि हमने बहुत कम से कम समय में रिजल्ट्स को अचीव कर लिया, लेकिन क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में जो है लगभग 6 महीने के लिए काम कर रहे थे, तो मैं आपको अब बताती हूँ कि वो क्या टेक्निक थी, और या फिर जो टेक्निक मैंने बताई वो किस तरीके से उन्होंने यूज़ किया, और उसको यूज़ करके उन्होंने कैसे अपने गोल को मैनिफेस्ट किया। तो जैसे कि मैंने बताया कि बाकी गोल्स के साथ जो दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स थी वो ये थी कि उनको मैंने जो है एडवांस बेसिक से लेके एडवांस लेवल की जर्नलिंग समझाई। जर्नलिंग कैसे किया जाता है, स्क्रिप्टिंग कैसे किया जाता है, कोई भी राइटिंग से रिलेटेड टेक्निक जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, काफ़ी बार अपने लाइफ में हम लोगों ने उसको यूज़ भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो मैंने उनको है जर्नलिंग सिखाई। अब जर्नलिंग के प्रोसेस में अगर बात की जाए तो मैंने उनको सबसे पहले ये क्लैरिटी दिलवाई, या फिर इस क्लैरिटी पे आने में मैंने उनकी हेल्प की, वो ये कि उनको आखिर एग्जैक्टली जो है या अप्रॉक्सीमेटली कितना एनुअल इनकम जो है वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब वो हमारा क्लियर हुआ तो दूसरी चीज़ पे हम आए, विच वॉज स्टेप 2 इन द जर्नलिंग प्रोसेस और जर्नलिंग टेक्निक। दैट वॉज वाई दे आर लुकिंग टू मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट और गेट दैट लेवल ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न हमें पता नहीं होता है। तो इसके थ्रू जो है मैंने उनको ये क्लैरिटी दिलवाई कि वो जो गोल अचीव करना चाहते हैं, या फिर 1 करोड़ जो वो एनुअल इनकम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो आखिर क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि यदि आज के समय पे यदि आपकी एनुअल इनकम 60 या फिर 65 लाख तक है, आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अपने फैमिली को वेकेशन पे लेके जा सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी अवेल कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा जो है रिच लाइफस्टाइल आप जो है अपना सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी आप दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में यदि डिज़ायर है
कि आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, तो डेफिनेटली सी बात है उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। तो जब हमने सेकंड स्टेप क्लियर किया, तब उनको पता चला कि जब उनके पास जब उन्होंने अलग अलग सर्टिफिकेशंस किए, कोर्सेज किए, ताकि वो अपनी सैलरी को इन्हांस कर सके, लेकिन चीज़ें नहीं हुई, तो क्या फीलिंग्स थी। तो हमने उनके माइंडसेट, उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स पे काम किया। इन्हें सारी चीज़ें हमने जर्नलिंग के अंदर ही की, क्योंकि जर्नलिंग बेसिकली एक टेक्निक है कम्युनिकेशन करने का, अपने गोल्स को लेकर के, या वो ऐसे वो हर चीज़ को लेकर के जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने गोल को क्लियर किया, गोल क्यों अचीव करना है उसको क्लियर किया, और उसके बाद जो है उस गोल से लेके गोल के रिगार्डिंग उनके जो भी माइंडसेट था, उनके जो भी फीलिंग्स थी, और जो एक्शंस वो लेते आ रहे थे, उसको हम लोगों ने जो है मैंने उनको लिखना सिखाया कि कैसे उसको जो है लिखा जाता है। जब उनका फर्स्ट मंथ में जर्नलिंग टेक्निक के थ्रू सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है जैसे कहते हैं ना कि डॉट स्टार्टेड टू कनेक्ट, तो उनके लाइफ में भी जो है धीरे धीरे वैसे लोग आना शुरू हो गए। कुछ वैसी उनके सेम कंपनी में जो है अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उन्हें एक होप मिला, उन्हें कहीं ना कहीं एक क्लियर डायरेक्शन मिला कि शायद ये सारी चीज़ें हमारे लिए ही आ रही हैं। बिकॉज नाउ दिस टाइम इन 1 month ऑफ टाइम दे वर वेरी ओपन टुवर्ड्स देयर गोल, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फियर, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट, विदाउट एनी काइंड ऑफ हैविंग एनी काइंड ऑफ रीजन दैट कैन पुल देम बैक। Now, the second month we work more on the vision board. अब विजन बोर्ड भी जो है, जैसे हमारा जर्नलिंग टेक्निक है, ये भी हमारा जो है एक कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है पिक्चर फॉर्म में, और पिक्चर के साथ हम जब अफर्मेशन को ऐड कर देते हैं, तो बेसिकली ये आपकी गोल का एक पिक्टोरियल फॉर्म होता है, जिसके थ्रू आप जो है अपने गोल को काफ़ी तेज़ी से अचीव करने की टूवर्ड्स आप मूव हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला हमने जर्नलिंग अलग अलग लेवल्स पे उनको सिखाया मैंने, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, तीनों लेवल की जर्नलिंग कैसे की जाती है मैंने उनको समझाया। 1 मंथ उन्होंने वो चीज़ें की, और सेकेंड मंथ हम लोगों ने विजन बोर्ड पे काम किया। तो उनको मैंने सिमिलरली, विजन बोर्ड के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस्ड। तो जो जब हमने जब इन तीनों स्टैंडर्ड्स को, तीनों लेवल्स को जब मैंने उनके साथ उनको जब मैंने बनवाया, तो उनको क्लैरिटी मिली कि अगर मैं अपने गोल्स को मैं लिख सकता हूँ, तो अपने गोल्स को मैं विजुअलाइज भी कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर काफ़ी लोग जो है वो विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, कई बार उन्हें डिस्ट्रैक्शन फील होता है, कई बार उन्हें कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं, कई बार वो फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि वो चीज़ असल में या इन रियलिटी वो दिखती कैसी है। तो दैट इज़ द रीज़न वी क्रिएट विजन बोर्ड्स। सो व्हेन आई हेल्प देम क्रिएट देयर ओन विजन बोर्ड रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल गोल, जो है उनको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने लगी, एंड दे वर एबल टू अंडरस्टैंड, एंड एट द सेम टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद देम ऑन द विजुअलाइजेशन टेक्निक, they were they were able to get the crystal clear picture of why do they need that much of annual income, what will they do with that thing, and what kind of lifestyle and everything else related to that goal they will be able to achieve. तो जब हमने ये सारी चीज़ें करना शुरू किया, तो देखा कि जो है उनके लाइफ में जो है उनको जो है जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आने आने शुरू हो गई धीरे धीरे। जैसे मैंने कहा कि डॉट्स कनेक्ट होना शुरू हो गए, और एक समय के बाद थर्ड थर्ड मंथ में जो है उनको जो है इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए, या उन्होंने ऐसे जॉब्स पे अप्लाई किया जहाँ पे जो है चीज़ें उनके गोल से मैच कर रही थी। तो बेसिकली हम जब ये टेक्निक्स अपनाते हैं, जब हम मैनिफेस्टेशन किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी भी टेक्निक को सही तरीके से यूज़ करें, ना कि सिर्फ सिंपली यूज़ कर लें। और यही कारण है कि बहुत लोग जो है अपने गोल्स बनाते तो हैं, लेकिन सही टेक्निक या सही तरीके से टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाने की वजह से वो गोल सिर्फ उनके ड्रीम पेपर पे ही गोल्स रह जाते हैं, सिर्फ उनके माइंड माइंड में वो गोल्स रह जाते हैं। तो सेकेंड थर्ड मंथ में उनको इंटरव्यूज आना शुरू हो गए, एंड फोर्थ और 4.5 मंथ्स के बाद दोनों लोगों ने, one of them was able to achieve 1 CR annual income, and the other person in the fourth month was negotiating for 1.25 CR as an annual income. And within 5 months, they both were able to achieve an annual CTC of 1 crore and 1.25 crore. अब काफ़ी लोगों का सवाल ये होगा कि जो है ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने जो है 4 या 5 महीने के अंदर ही उनको उस गोल पे अचीव करवा दिया, जबकि जो है वो अभी सिर्फ 60 या 65 लाख की सैलरी का एनुअल इनकम कमा रहे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे यही यही चीज़ है, और यही गलती है जो बहुत लोग हम में से करते हैं, कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो तुक्के से हो गया होगा, ये एक वंस इन अ ब्लू मून वाला सिचुएशन होगा। लेकिन सिर्फ एक यही एग्जाम्पल नहीं है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में और भी अपने क्लाइंट्स के एग्जाम्पल्स, टेस्टिमोनियल्स, और उनके उनके गोल्स के बारे में आपसे शेयर करने वाली हूँ,
एंड आप देखेंगे कि ये मैनिफेस्टेशन या फिर सक्सेस या फिर अट्रैक्शन ऑफ योर गोल्स इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। तो ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद अपने लाइफ में 1 साल के अंदर जो है 10 years ऑफ सक्सेस को 1 साल में कमाई है। तो मैंने किसी किसी को यदि क्योंकि मुझे पता है कि वो टेक्निक्स कैसे यूज़ किया जाता है, एक सक्सेस वाली लाइफस्टाइल कैसे बनाई जाती है। तो जब भी हम अपने गोल्स के टुवर्ड्स काम कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने जीवन में एक सही कोच को जो है हायर कीजिए। जैसे पिछले 1 साल में लगभग 150 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को, बिजनेस पीपल को मैंने जो है कोचिंग दी है, ट्रेनिंग दी है, उनके बिजनेस के रिगार्डिंग, उनका फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, उनके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल और बिजनेस कैटेगरीज में मैंने लोगों की हेल्प की है, और उन्होंने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा और बड़े से बड़े गोल्स को अचीव किया है। सो जस्ट टू रिपीट वंस अगेन, मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट टेक्निक्स, बट how you apply those techniques and how you create a lifestyle, that matters a lot. कोई भी पॉडकास्ट देख के, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो देख के, कोई भी मैनिफेस्टेशन वीडियो देख के आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपके साथ छोटे-मोटे सक्सेस से रिलेटेड कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं और आपको लगेगा कि मैनिफेस्टेशन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मी, बट वो लॉन्ग रन में आपको या फिर कुछ आने वाले समय में आपको वो रिजल्ट्स नहीं देगा। एंड आई व्हेन आई वर्क विद द पीपल एंड एनीथिंग अदर दैन हेल्थ एंड रिलेशनशिप, I always say that success can be guaranteed because success has a formula. If you follow the formula, if you apply the formula, definitely there is a high chance that you will achieve your a goal, or you will achieve the desired results that you have been expecting. So it is all about how you apply the techniques and how you make things as a lifestyle. If you are somebody who is struggling or who is having a big goals in their life related to anything, you can always contact me. I will work with you towards your journey, towards your goal, because as a life coach, as a healer, as an NLP master, I take the responsibility, I take the accountability to make you reach that goal. So if you have still been waiting for कि अभी समय आया नहीं है, अभी मुहूर्त नहीं निकला है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, अभी इतनी जिम्मेदारियां, अभी वो जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट पर्सन। एंड आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि जो भी लोग प्रोग्रेसिव माइंडसेट के नहीं होते हैं, वो बार बार एक ही साइकिल में घूमते रहते हैं, बार बार एक ही प्रॉब्लम के अराउंड उनकी ज़िंदगी जो है घूमती रहती है। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम बार बार जो है आ रही है, आप उसके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइफ कोचिंग का हेल्प ले सकते हैं, हीलिंग का हेल्प ले सकते हैं, और जो है अपने गोल्स को कम से कम समय में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और जब तक आप कई बार उस कीमत को पैसे से कई बार पैसे से उसकी कीमत डिसाइड होती है, कई बार आपके एफर्ट्स से वो डिसाइड होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी वो बाकी चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू रियली इफ़ दिस वीडियो रियली made you think through many things about your success and the journey that you are currently into, then do share your comments, do like this video, and I will see you soon with another success story from a particular technique that I about my clients. Thank you so much. My name once again is Preeti Singh. I'm an international award-winning life coach, healer, and a NLP master. Thank you so much.